जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना संगत जी, मैंने थोड़ा जिहा साह चढ़िया होया। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਲੀਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਦਕ ਲੈਣੇ ਆ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨੀਚੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈंने ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਈ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਾਲੀ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, 3-4 ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਦਵਾਤੀ ਫਟਾਫਟ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਤੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਤੁਰਥੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮਿਠਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਸੇਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ, ਉਸੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਸੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਨਹਾ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ
ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਫਟਾਫਟ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀਟਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵਿੰਡੋ ਸੀ। ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਕਬੂਤਰ, ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਠੰਡੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਰੇ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁੱਟਰ ਗੁ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਨ ਨਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਮੇਰੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਂਸ ਤੋਂ, ਹਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਗ ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈंने ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸੋਈਏ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲੇਟਣ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਮੇਰੀ ਟੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੱਲ ਉੱਠ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਾਫ਼ੀ 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 ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः
शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से करना चाहती है। गुरु जी का सत्संग शुक्राना मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, आप मुझे बहुत दिन से आप मुझे मैसेज कर रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस शुक्राना आज गुरु जी आपकी आज्ञा से मैं शुक्राना कर रही हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, इतना लेट मैंने शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी वैसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स हर एक संगत को देते हैं। गुरु जी इतने अच्छे हैं कि गुरु जी की महिमा इतनी अच्छी है कि वो हर एक संगत को अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे भी गुरु जी ने अपनी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मैंने पिछले सत्संग में भी अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में मैंने किया, अपना गुणगान किया है गुरु जी की ब्लेसिंग्स का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मतलब इतना सुनते हैं संगत जी। गुरु जी आपकी हर एक छोटी छोटी बातों को सुनते हैं। आप बस गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। गुरु जी मतलब मैंने गुरु जी से एक बार ये कहा कि गुरु जी मेरे पास छोटा सा मंदिर है, लेकिन मेरे पास गुरु जी आपका स्वरूप है, आपका चरण स्वरूप नहीं है। तो गुरु जी ने मतलब इतनी जल्दी मुझे अपने चरण स्वरूप की ब्लेसिंग्स दे दी। अपने जन्मदिन पे मैं उनके बर्थडे पे यहाँ सिडनी मंदिर गई। उन्होंने वहाँ पे उनका महासत्संग चल था। वहाँ पे उन्होंने संगत जी ने मुझे गुरु जी का छोटा चरण स्वरूप दिया, जो मेरे मंदिर में भी आ गया गुरु संगत जी, क्योंकि मेरा मंदिर बहुत छोटा है, उसमें बड़ा चरण स्वरूप नहीं आ सकता था। तो गुरु जी ने मेरी बात सुनी। उन्होंने मुझे इतना छोटा चरण स्वरूप दिया कि वो मेरे मंदिर में आराम से आ सकता है। शुक्राना गुरु जी, हर एक पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा। एक बार गुरुपा ने मुझे ये कहा था कि मैं सावन में तेरे घर आऊँगा और तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा। तो हमारे सबके पास संगत जी हर एक हम सब परिवार वालों के पास गुरु जी का एक एक स्वरूप है। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे बेटे ने ना स्कूल गया तो उसने गुरु जी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था। तो वो स्कूल में सावन में गिर गया कहीं पे, उससे उसको पता नहीं चला। धागा घर पे आया, उसके साथ एक गुरु जी के स्वरूप के साथ एक और लॉकेट पहना हुआ था उसने, वो भी घर पे आ गया। धागा भी घर पे आ गया, लेकिन गुरु जी का लॉकेट स्वरूप घर पे वो नहीं लाया। पता नहीं स्कूल में कहाँ गिर गया, माफ़ करना गुरु जी, छोटा बच्चा है वो, 6 साल का आपका। तो सावन का महीना ही चल रहा था, तो हम एक दिन गुरु जी के टेम्पल गए सावन में। तो वहाँ से एक संगत जी ने हमको गुरु जी का लौकिक स्वरूप दिया, और उन्होंने गुरु जी का यही मैसेज आया था कि मैं सावन में तेरे घर आऊँगा, और गुरु जी सावन में ही हमारे घर पे है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरु जी हमेशा यही मैसेज करते हैं, मैं हमेशा तेरे अंग संग ही हूँ, तो बस दिल से मुझे याद कर। तो मुझे हमेशा गुरु जी की प्रेजेंस दिखाई देती है, बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं गुरु पा। 7777 788 444 999 111 7777 हर एक इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा देते हैं, पिजन रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक बार मैं अपने हस्बैंड अंकल से ऐसी ही बात कर रही थी कि मैं अपने बेटे देवांश को
डांस में डालना चाहती हूँ। तो देखो गुरुजी ने मतलब मेरी बात कैसे सुन ली। उन्होंने जन्माष्टमी में मेरे बेटे को डांस परफॉर्मेंस करने का मौका दिया। एक संगत जी आई, उन्होंने खुद से पूछा हमें कि आपका बेटा क्या जन्माष्टमी में परफॉर्म करेगा गुरुपा के मंदिर में। हम इतने खुश हुए संगत जी कि मतलब हम तो चाहते थे कि हम देखें कि हमारा बेटा कैसे करता है। गुरुपा की कृपा से उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शुक्राना गुरुपा, आपने अपने बच्चे को इतनी ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा हमेशा यही मैसेज करते थे कि मैं जन्माष्टमी में मैं तेरे को कृष्ण जी के साथ दर्शन दूंगा। तो हम यही सोचते थे कि पता नहीं गुरुपा कैसे हमें दर्शन देंगे। तो हम जिस दिन जन्माष्टमी का डांस का परफॉर्मेंस था बेटे का गुरुजी मंदिर में ही, उन्होंने वो प्रिपरेशन के टाइम पे पता नहीं कहाँ से एक बच्चा आया और उसने कहा कि आपका बेटा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छे से डांस करे। और संगत जी, मैं उस बच्चे को जानती भी नहीं थी कि वो है कौन। और वो मुझे आया, मुझे बोल के वो कितनी देर हमें देखता रहा, मुझे भी मेरे बेटे को भी। शुक्राना, मुझे पक्का पता है कि वो गुरुजी का ही स्वरूप थे। शुक्राना गुरुजी किशन जी का स्वरूप थे जो हमें दर्शन देने आए थे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हर एक बात का जवाब देते हैं संगत जी, अपने मैसेजेस के थ्रू, अपने सत्संग के थ्रू। कोई भी हमारे मन में कोई भी बात होती है, गुरुजी हमारे डाउट्स को ज़रूर क्लियर करते हैं। एक दिन गुरुपा मेरे बेटे ने ना पता नहीं स्कूल में ठंडा पानी कहीं से वाटर कूलर से पी लिया था संगत जी। तो मैं उसके गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। उसने नहीं हमें बताया कि उसने क्या किया ऐसा कि उसका गला ऐसा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि हमें डॉक्टर से जाके एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी। तो पता नहीं, मैंने रात को गुरुजी को यही कहा, गुरुपा आपका बच्चा है, आपने मुझे पता नहीं उसने ऐसा क्या किया है कि इसका इतना ज़्यादा गला ख़राब हो गया कि अभी पिछले हफ्ते उसने एंटीबायोटिक्स उसकी 1 हफ़्ता चली, फिर उसकी 1 हफ़्ता एंटीबायोटिक चल रही। तो मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुपा इसने ऐसा क्या किया है स्कूल में। तो गुरुपा ने पता नहीं मेरे मन में सोई हुई को रात को एक थॉट डाला कि इसने वाटर कूलर से पानी पिया है, चिल्ड पानी जो इसने पिया है और उसकी वजह से इसका गला ख़राब हो गया। तो मैंने अपने बेटे को सुबह पूछा कि आपने क्या ऐसे ही वाटर कूलर से पानी पिया है। तो उसने कहा कि हाँ मम्मा, मैंने वाटर कूलर से पिया। मतलब गुरुजी आपके हर एक बात का जवाब ज़रूर देते हैं, चाहे वो सपने में दें चाहे वो कैसे भी दें, पर वो ज़रूर देते हैं संगत जी। बस हमको गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी अपना सत्संग शुक्राना सत्संग यही नए सत्संग की तैयारी करती है आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं एंड्रू फ्रॉम पंजाब तो बोलदी पई हां। जय संगत जी, मैं अपने गुरु जी दा शुकराना मंत्र जापना शुरू करदी हां। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। जय संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब अगे बैठ के बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलांगे। जे बोलने च कोई गलती होगी मैनू माफ़ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैनू गुरु जी के टैलीपैथी का मैसेज आंदा है संगत जी कि अपने घर तुलसी का बूटा लगा। हाँ, मैं कि तेरे घर बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, अपने घर तुलसी का बूटा लगा। संगत जी साढ़े घर तुलसी के बूटे 3-4 बूटे सीगे, जिते भी वो पत्ता गिरता सी तुलसी का उत्थे तुलसी उग जाती सी। और मैं क्या साढ़े घर तो तुलसी बहुत है। गुरु संगत जी साडा मेरी दरानी है विंडो फादर मदर इन लॉ नाल रहिंदी है और मैं मेरे बेटा बेटी हसबैंड असीं रहने। घर इक्को ही है, डिवाइड नहीं किया होया, बट किचन अलग अलग है। और मैं टेरिस से बहुत घट ही चढ़ती जाती होंगी सी संगत जी। मैं क्या गुरु जी ने मैनू तुलसी लगाने का मैसेज दिता, तुलसी तो साढ़े घर इन्नी लगी हुई है। संगत जी जब मैं उपर टेरिस से 2 दिन बाद देखन गई, एक भी बूटा नहीं तुलसी का, एक भी। और संगत जय गुरु जी आप ही जानते हैं जो भी कुछ होया किदा होया। संगत जी फिर मैं गुरु जी की कृपा नाल तुलसी का बूटा लैके आई, लगाया 2 गमलियां विच। और गुरु जी कहते तुलसी का बूटा लगा के उन्होंने मैं कि मुठ मुठ ना, एक मुठ ना जल दो, ज़्यादा जल नहीं देना, जल दो। और उन्होंने बूटे नूं पानी देण नाल नैगेटिविटी खत्म होंदी है। सच्ची संगत जी बहुत सही गल आ। मैं इदा किया, मेरे दिमाग जिदा सोचना ही बंद कर दिता। मेरे दिमाग ने बस जो है प्रेजेंट है वही है। जय संगत जी गुरु जी बहुत दयालु आ, आसान तो आसान काम दसते जो असी कर सकते हाँ। संगत जी बस मेरा इन्ना क छोटा जिहा शुकराना सी। हुण बूटे लगे हुए मैं चल बन जानी हाँ, हत्थ नाल ही पानी दिन्नी हाँ तुलसी नूं, वध गई आ। और संगत जी इसी दे नाल मैं अपने दूजे शुकराने की तैयारी करती हैं गुरु जी के मंत्र जाप नाल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी बहुत दयालु, बहुत दया करने हैं। पल पल साडा देखते पे, पल पल ध्यान रखते हैं। संगत जी गुरु जी नूं कोटि कोटि लख लख शुकराना 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 शुकराना, हर पल का शुकराना, हर सवास का शुकराना। जय गुरु जी, 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 जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज ये मेरा, जैसा कि मैंने 7 दिन की सेवा ली है गुरु जी के कहने पर सत्संग शेयर करने की, तो आज मेरा ये चौथा सत्संग है। तो गुरु जी की कृपा से आज ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। और सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी का हम क्या ही शुक्राना करें। हमारी तो खैर इतनी औकात ही नहीं है कि हम गुरु जी का शुक्राना करें, लेकिन फिर भी हम कुछ शब्दों को उनके चरणों में शुक्राना कहकर हम अपना सत्संग शेयर करते हैं। तो मैं भी आज कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी। संगत जी, मैं अभी 6 महीने से ही जुड़ी हूँ गुरुजी से, और मैं मतलब अचानक से उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, और वो भी तब जोड़ा जब मुझे चारों तरफ से मतलब मैं हार गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ से मतलब निराशा ही निराशा थी। उस टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। उस चीज़ के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, लाख लाख शुक्राना उस चीज़ के लिए कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने साथ जोड़ लिया। संगत जी, हम मतलब मैं पिछले 3 साल से हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरी बेटी 8 साल की है, एक 2 साल की है। तो हुआ यूँ कि मेरे पापा पहले एक्सपायर हो गए, और 2 साल के अंदर अंदर मेरी मम्मा भी एक्सपायर हो गई। और मैं अपनी मम्मा से मतलब बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरह से ये कह लो कि वो मेरी बैकबोन थी। तो उनका जाना मतलब बिल्कुल तोड़ गया मुझे। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब मैं उनको मम्मी कम अपनी फ्रेंड ज़्यादा मानती थी। और अब नवंबर में आगे मेरी मम्मी को 2 साल हो जाएंगे गुरुजी के चरणों में गए हुए। जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई तो मेरी जो छोटी बेटी है वो 4.5 महीने की थी। तो मतलब मम्मी का जाना और मेरे हाथ में इतने छोटे बच्चे का होना, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता था उस टाइम कि मैं खुद को संभालूं कि मैं इस छोटे से बच्चे को संभालूं। मुझे मतलब मेरी खुद की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं खुद को संभालूं, कि मैं इस 4.5 महीने की बेटी को संभालूं या एक 5.5 साल की मेरी बेटी थी उस टाइम, उसको संभालूं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई थी बिल्कुल। हमारे साथ कोई नहीं रहता, हमारे इन-लॉज़ नहीं रहते। मैं, हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे, कोई देखने वाला नहीं था। अब हस्बैंड भी अगर मेरे पास घर पे बैठ जाएं तो फिर हम खाएं क्या। अब उनको तो ऑफिस जाना होता था। लेकिन मैं फिर भी मतलब मैं शुरू से माता रानी को बहुत मानती हूँ। तो मैं मतलब यही कहूँगी कि माता रानी ने मुझे हिम्मत दी, कैसे ना कैसे। रोती रहती थी मैं, अपनी बेटी को संभालती थी, दोनों को कैसे तैसे। अब इधर तो मतलब मम्मी के जाने का इतना दुख आ गया एकदम। और इधर मेरे अंकल जी का काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब कहीं एक जॉब छूट रही है, दूसरी लग रही है, दूसरी छूट रही है, तीसरी लग रही है। जहाँ जाओ वहाँ ना ना ना, मतलब कहीं पे भी सेटिंग नहीं बैठ रही थी इनके काम की। हर जगह ना ही ना हो रही थी। मतलब ऐसा होता था कि बनते बनते काम ना हो जाते थे। तो अब जब 6 महीने पहले जब गुरुजी ने हाथ थामा है, तब से टचवुड थोड़ा इनके काम में इम्प्रूवमेंट हुआ है।
और गुरुजी ने थोड़ा मुझे भी हिम्मत दी है, वरना तो मतलब ऐसा लगता था कि अब लाइफ में है ही नहीं कुछ, बचा ही नहीं, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता था, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, ना खाना पीना अच्छा लगता था, ना कहीं आना जाना, ना कुछ भी नहीं अच्छा लगता था संगत जी। तो इनफैक्ट जब सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग में गुरुजी की सत्संग शुरू किए सुनने, तो मेरे पास यही सब ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आए कि तुम्हारा काम किसी ने बंधवा रखा है, तुम्हारे घर पे ब्लैक मैजिक है, ये वो। मैंने कहा गुरुजी अब तो हम आपकी शरण में हैं, अब चाहे जो मर्जी हो, ब्लैक मैजिक हो या कुछ भी हो, अब आपको संभालना है सब। जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको भी ये रियलाइज़ कराओ कि ये चीज़ गलत है, ना करें किसी के साथ ये सब, बहुत झेलना पड़ता है, वो तो करके दूर हो जाते हैं। तो संगत जी ये सब अभी भी टेंशन्स तो बहुत हैं, लेकिन उन टेंशन्स को झेलने की थोड़ी हिम्मत दे दी है गुरुपा ने, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी वो सब ठीक करेंगे। बस यही अरदास है उनके चरणों में कि अपने से जोड़ा है तो बस जोड़े रखना गुरुजी, सबसे बड़ी चीज़ तो वो है, अपने से दूर मत करना हमें। हमारे गुरुजी मतलब बहुत 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 अच्छे हैं, एक एक चीज़ का इतना ध्यान रखते हैं, जो हम मन में सोच रहे होते हैं उसी तरह के मैसेज एकदम टेलीपैथी से एकदम सामने आ जाते हैं, उन्हीं के थ्रू वो उसी चीज़ का जवाब दे देते हैं। तो गुरुजी सबका भला करो, सर्वदा भला करो, जिन जिन के जीवन में परेशानियां दुख चल रहे हैं सबकी परेशानियां दूर करो, सबको ब्लेस करो, और इन ब्लैक मैजिक करने वालों को थोड़ी सद्बुद्धि दो गुरुजी कि ये किसी का घर ऐसे ख़राब ना करें। जो जो टेंशन में चल रहे हैं उन सब की टेंशन दूर करो गुरुजी, आपके चरणों में बस यही अरदास है, सब खुश रहें, सब खुश रहें। तो मैंने जो अरदासें एक दो लगा रखी हैं गुरुजी के चरणों में, जब मेरी वो पूरी होंगी तो मैं उनका भी सत्संग सबके साथ शेयर करूँगी। आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करना, और गुरुजी आपको भी खूब, आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें, और सारी संगत को ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आज ये मेरा 5वां सत्संग है, जैसा कि मैंने 7 दिन की सेवा ली हुई है उसका ये आज 5वां सत्संग शेयर करवा रहे हैं गुरुजी महाराज। तो आज मैं अपना, जो मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी ने जो मुझे सत्संग अटेंड करवाया था अपना, आज मैं वो वाला सत्संग अपना शेयर करूँगी, कैसे मैं गई वहाँ पे और कैसे क्या मुझे वहाँ एक्सपीरियंस फील हुआ वो शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो हुआ ये संगत जी, मैंने सबसे पहला सत्संग गुरुजी का 2024 में 6 जुलाई को गुरुजी ने मुझे अटेंड करवाया। जहाँ मैं रहती हूँ, जिस सोसाइटी में, वहाँ पे मतलब मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ, तो ग्रुप में इनविटेशन आया हुआ था। पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरी 2 बेटी हैं और एक तो अभी काफ़ी छोटी है, 2 साल की है। तो
उस सत्संग का टाइम था शाम को 6 से 8 बजे का, और मेरे हस्बैंड घर आते हैं 8 बजे तक ऑफिस से। तो अब मुझे सुबह से यही लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊँगी, कैसे जाऊँगी, बच्चों को किन के पास छोड़ के जाऊँगी, दोनों बच्चों को। और बच्चों को वहाँ ले जा नहीं सकते, क्योंकि फिर छोटे बच्चे के साथ तो क्या ही तुम शांति से सत्संग सुन पाओगे, वहाँ पे कैसे बैठ पाओगे। तो मैं ये सोच के बैठ गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी और सत्संग में मैं चली जाऊँगी। लेकिन अंदर से मेरा मन भी बहुत कर रहा था कि गुरुजी मैंने कभी आपका सत्संग अटेंड नहीं किया, मैं क्या करूं, मेरा मन तो बहुत कर रहा है जाने का, लेकिन अब आपको सब पता है बच्चों को किसके पास छोड़ के जाऊं, कैसे जाऊं, और ये आएंगे 8 बजे, तो तब तक तो ख़त्म ही हो जाएगा सत्संग। तो संगत जी मतलब पता नहीं गुरुजी ने एकदम मेरे दिमाग में थॉट डाला, मैंने कहा चलो एक बार मैं पूछ लेती हूँ हस्बैंड से, अगर वो थोड़ा सा जल्दी आ पाएँ तो मैं चली जाऊँगी। तो 6 बजे मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा जल्दी आ पाओ, ऑफिस से निकल पाओ, तो क्या आप आ सकते हो। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ अभी 5-10 मिनट में। तो संगत जी इतनी देर में तो 6:15 भी हो गए। तो अब मैंने कहा मैं वेट कर रही हूँ कब ये बताएं कॉल करके, क्या मैं गुरुजी से प्रेयर किए जा रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ ये आ जाएं जल्दी और मैं बच्चों को इनके पास छोड़ के मैं चली जाऊँ थोड़ी देर के लिए। फिर इनका कॉल आया, कह रहे तुम रेडी रहो और मैं 7 बजे तक पहुँच रहा हूँ और तुम थोड़ी देर के लिए चली जाना। तो मैंने मन ही मन मैंने कहा जय गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही, मतलब मैंने कभी कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने बहुत 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 शुक्राना किया गुरुजी का। और मैंने उतनी देर में संगत जी मतलब 6:15 बजे मुझे पता चला, इन्होंने मुझे फ़ोन किया है, और उतनी देर में मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने मतलब इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने फटाफट दाल चावल बनाए, बच्चों को दूध दिया, एक आध छोटा मोटा जो काम था वो फिनिश किया, खुद मैं तैयार हुई। मतलब मैंने पौने 7 बजे तक मैंने सारे काम निपटा दिए थे अपने, जब तक ये आए मैं बिल्कुल रेडी थी। और जैसे ही ये 7 बजे आए हैं, ये इनको मैंने बच्चों के पास छोड़ा है और मैं फटाफट चली गई। अब मैं मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरे को अंदर ही अंदर कितनी खुशी हो रही थी, लेकिन पता भी कुछ नहीं था कि क्या होता है वहाँ, कैसे बैठना है, कहाँ मत्था टेकना है, क्या करना है। तो मैं गई, तो मैं तो वैसे ही 6 बजे से शुरू था, तो मैं तो 7:10 पे मैं वहाँ पहुँची हूँ। तो सब लोग आए हुए थे, सब बैठे हुए थे। तो सामने एकदम मतलब जैसे ही मैं जिनके जहाँ पे था सत्संग, बाहर तक डेकोरेशन हो रखी थी और इतनी अच्छी रोज़ेस की खुशबू आई संगत जी मुझे, मतलब वहाँ लॉबी में घुसते ही मतलब मेरा मन खुश हो गया। और मैंने दरवाज़ा खोला वहाँ उन लोगों का जिस घर में सत्संग था, सामने देखा गुरुजी की इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी और गद्दी लगी हुई, काफ़ी संगत आई हुई। तो बस मेरा मन खुश हो गया, मैंने जाके सबसे पहले मत्था टेका और मैं बैठ गई। तो फिर मुझे वहाँ पे जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, मैंने वो लिया। और जो वहाँ पे जो भजन चल रहे थे संगत जी, मतलब इतने मनमोहक भजन थे वो सुन के, मतलब दिल खुश हो गया। देख के जा रही हूँ मैं गुरुजी के स्वरूप को और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने इतना मन ही मन इतना शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी देखो, मतलब कहाँ मैं ये सोच के बैठी हुई थी कि मैं आ ही नहीं पाऊँगी और आपने खींच के मेरा हाथ और बिठा लिया अपने सामने। वाह गुरुजी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी संगत जी। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे उस दिन बुला लिया अपने सत्संग में। और उस दिन के बाद तो फिर मैंने कई सत्संग अटेंड किए, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग में जाना। तो गुरुजी बस यूं ही अपने से जोड़े रखना, सर्वदा भला करना,
मुझे और मेरे परिवार को खूब ब्लेस करना, खूब हमें हिम्मत देना, हर दुख से लड़ने की ताकत देना गुरुजी। जो कुछ लाइफ में चल रहा है उसको भी मुझे पूरा यकीन है आप जो भी टेंशनें चल रही हैं उसको जल्दी ठीक कर दोगे। सबका भला करना। जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी उनको भी और उनके परिवार को खूब ब्लेस करना, सारे गुरु परिवार को ब्लेस करना। शुक्राना 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 गुरुजी। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना गुरुजी, रोम रोम का शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ा बार शुक्राना गुरु जी। जेड़ा दिता ओदा भी शुक्राना, जेड़ा नहीं दिता ओदा शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं उत्तराखंड से गुरु जी की प्यारी बेटी, नाम नहीं बताऊंगी, 3103 मेरा लास्ट में फोन का नंबर है। मैं सुबह के 4:50 हुए अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी ये कहते हैं, बार बार कहते हैं, बेटी तू घबराना, तू चिंता मत कर। मगर गुरु जी बच्चे ने कर्जा कर लिया, इस कर्जे को उतरवा दो, मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे ये जबरदस्त चिंता में हो गया है। गुरु जी कहते हैं तेरा बच्चा हर टाइम टेंशन में है, तो इसे कुछ मत कहा कर, ये कर्जा उतरवा दूंगा मैं, कर्जा उतर जाएगा तो शुक्राना करी जा, शुक्राना करी जा, तेरा कर्जा तुझे पता भी नहीं चलने का तेरे काम कैसे हो गए। तू शांत मन से रहा कर, गुस्सा मत करया कर। गुरु जी जब टेंशन होती है, संगत जी जब टेंशन होती है तो गुस्सा ही आता है बच्चे के साथ बोल के। और क्या करूँ मैं जिस टाइम परेशान हो जाती हूँ, तो गुरु जी कहते हैं तू गुस्सा गुस्सा मत करा कर, चुप रहा कर, जो कोई बोलता है बोलने दे, अपना शांत रहा कर, अपना सत्संग सुना कर, सत्संग में ध्यान लगाया कर, और सब रिश्तेदारों को छोड़ दे बस। जिससे मैंने तेरा दूर करना था दूर कर दिया, जो तेरे पे ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, तेरे नज़दीकी करवा रहे हैं, और मैं काट रहा हूँ, फिर हट हट के हो रहा है। बच बच के रह, अपने घर में तुलसी का पेड़ लगा और प्रजाति का पेड़ लगा अपने घर में, और इन्हें जल्दी, और शमी का पेड़ लगा, और तुलसी के 3 पत्ते गिलास में जल में डालकर रखो और उसे पियो, जल को स्वीकार करो, सारी बीमारी कट जानी है तेरी। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, तेरी बड़ी सी बड़ी बीमारी मैं काट दूंगा, अपने आप कुछ कट गई हैं, कुछ और काट दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले। सारी बीमारियों का बहुत दुकान पाल रखी है, शरीर में बीमारियों की दुकान पाल रखी है। आज गुरु जी का मैसेज आया था मेरे पास, पूरी दुकान बीमारी की तो नहीं पाल रखी है अपने शरीर के अंदर। हाँ गुरु जी मैं क्या करूँ बताओ, संगत जी मैं क्या करूँ, मेरे बस की बात नहीं है, वो तो गुरुपा को पता है कि हाँ यही पाठ कर रही बैठी हुई मंदिर में बैठी, गुरुपा को पता है। हाँ जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ा बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी पाठ करने बैठती हूँ, जब भी सत्संग लिखने बैठती हूँ, कोई ना कोई बीच में बुलवाने लगता है, सत्संग भी आराम से कोई नहीं कर लिखनवा देता, शेयर करने देता। गुरु जी मैं बहुत परेशान हो गई, सारा दिन परेशानी में रहती हूँ गुरुपा में, संगत जी में बहुत परेशान हो गई हूँ। अब भी अब 4:50 बैठी हूँ, अब भी शुरू हो गया, कहाँ गई मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कोई मंत्र जाप पे बैठती हूँ, जब ये हाल करते हैं घर में, कोई मंत्र जाप आराम से नहीं करने देता शांति से। गुरु जी कहते हैं तो चिंता ना कर, तो अपने घर की सफाई कर, सारी सारी मूर्ति खंडित है मंदिर में निकाल दे। मैंने तो सब कुछ निकाल दिया, धागे धुगे सारे निकाल दिए, अब भी गुरु पाहिन दे रहे हैं तेरे मंदिर में गणेश जी की मूर्ति खंडित है, मुझे तो कोई कहीं दिखाई नहीं दे रही, सारा देख लिया मैंने तो। गुरु अपने आप हाथ पकड़ कर निकलवा दो, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है।
अपने आप देखो आके, मुझे नहीं पता गुरु बाप, मैं नहीं जानती कहाँ खंडित मूर्ति है कहाँ नहीं है। हे गुरु जी, हे मेरे पिता परमेश्वर, देवों को देव महादेव, आपको ही पता है। आपकी दी बहुत परेशान है इस टाइम पे। मैंने तो अपने आप को आपको सिलेंडर कर दिया है। मैं तो आपके चरणों में अपने आप को सौंप दिया है। जो करोगे आप करोगे गुरु पर, मेरे पास का नहीं रहा कुछ। जो कुछ करोगे आप करोगे। बस ना मेरे पे दुख देख के जाते, ना मुझे कुछ दुख ये कहो कष्ट आने वाला है। आप ही संभाल लोगे जो कुछ संभाल लो। हे गुरुपा, आप हो मेरे पापा, हो आप मेरे माता हो, पिता हो, सब आप हो मेरे। मेरे अंकल भी नहीं है इस दुनिया में। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, बहुत परेशान हूँ संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुपा अपने आप देखेंगे, मुझे कुछ देखेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। हर टाइम टेंशन में रहती हूँ, पूरी पूरी रात सो नहीं पाती हूँ। बैठी बस गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। जिस टाइम आँख खुलती है बैठ जाती हूँ, जितना हो सकता है करती हूँ। चाय का भोग लगाया सुबह सुबह गुरु जी को, चाय प्रसाद का भोग लगाया। उनका गुरु पाप भोग लगा लो। अब मैं अब क्या करूँ, बस बैठी रहती हूँ। जब टेंशन होती है, नींद नहीं आती तो बैठी रहती हूँ। संगत जी बहुत परेशान हूँ मैं बस। मेरे गुरु पा कहते हैं तेरी परेशानियों का दिन खत्म हो गया, तेरी खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है, तेरी परेशानियों का दिन खत्म। गुरु पा कौन सा टाइम आएगा मेरे पास खुशखबरी आएगी, मेरी झोली में खुशियाँ भरेगी। मैं तो आँख उठा उठा कर देख रही हूँ। गुरुपा कहते हैं मेरा स्वरूप भी तेरे घर में आने वाला हूँ, ब्लेस करके भेजूंगा। मैं आने वाला हूँ तेरा गुरु खुद ही आने वाला हूँ मैं। आ जाओ गुरुपा, मैं तो इंतजार देख रही हूँ वहाँ पे। सुबह बटरफ्लाई के भी दर्शन होते हैं, तो क्या सुबह सुबह उठती हूँ घर के आगे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं मुझे। गुरुपा कहते हैं पितरदोष है, पितरदोष है। गुरुपा ने बताया कि सुबह सूरज को जल दो, उसमें चीनी डाल के सूर्य भगवान को जल दो। संगत जी आज गुरुपा ने ये कहा है। ठीक है गुरुपा, जल भी देना शुरू कर दूंगी मैं। और गुरुपा आप देखोगे, जो कुछ देखोगे, मुझे नहीं पता कुछ भी जो आप बता रहे हो। उठा नहीं जा रहा था, शरीर बहुत भारी हो रहा था। कहते नींबू वाला उपाय कर, नींबू वाला उपाय कर। नींबू वाला उपाय भी मैं कई दिन से कर रही हूँ। मेरे से नहीं उठा जा रहा था बिल्कुल भी, पर से भी कर रही हूँ मैं। ये गुरुपा देखेंगे, अब तो बैठे हैं साक्षात मंदिर में, अपने आप देखेंगे अपनी धी को परेशान है। गुरुपा कहते हैं घर में छिपकली फिरती है, फर्श पर छिपकली फिरती है। कह रहे लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है तेरे घर में, टेंशन ना ले, सब कुछ हो, तेरे भंडारे भर दूंगा, से खुशियाँ ही खुशियाँ ला दूंगा, फिक्र मत कर। नहीं वो गुरुपा तो आप देखोगे, मुझे नहीं पता संगत जी। मैं तो यही कहती हूँ गुरुपा आप देखोगे, शांति बनाए रखो घर में, बस शांति होनी चाहिए। गुरुपा मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस कलेश से, दिन रात के कलेश से बहुत परेशान हो गई। शांति कर दो घर में, इस बच्चे का मन शांत कर दो। गुरुपा कहते हैं चांदी का कड़ा बनवा इनके हाथ में डाल, और गुस्सा आता है इन्हें। ठीक है गुरुपा, वो भी देखती हूँ, वही बनवाऊंगी, डालूंगी इनके हाथ में। बड़ी मंदिर आ तेरी टिकट बुक कर दी है मैंने, बड़ी मंदिर आ जा तेरी जल्दी। ठीक है गुरुपा, जब आप बुलाओगे हाथ पकड़ के ले जाना। मैं तो तैयार बैठी हूँ जाने के लिए, कोई मेरा तो साथ नहीं बन रहा है, मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ गुरुपा। जब आप बुलाओगे मैं जब ही आ जाऊंगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, बस अब इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दस। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दस। शिव जी से दस। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दस। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दस। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दस। ओम नमः शिवाय, शिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ा बार शुक्राना गुरु जी। जड़ दिता दावे शुक्राना, जड़ा दे दिता गुरु शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।